हाय। मेरा नाम सौरभ साहा है। और मैं ये वीडियो बहुत सालों से करने की कोशिश कर रहा था, बट बिकॉज आई एम सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटर, मैं बहुत आलसी हूँ। दुनिया भर के काम भी रहते हैं, बट इन सब कारणों के कारण मैं ये वीडियो नहीं कर पाया। बट बिफोर आई गो एनी फर्दर, आई थिंक द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोपोगेट ओवर हियर इज दैट हाउ गुड इज आवर एजुकेशन सिस्टम. We've been hearing a lot about India's education, the products of our education for the last few decades. मेरे करियर को भी 2 डेकेड हो गए हैं जब से मैंने स्टार्ट किया था 2002 में. सो फ्रॉम देन टिल नाउ आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट India's so-called intellectual capital. Why do we not produce Elon Musk's or Larry Pages of the world? Why can't we have a Google and Meta in-house in India? इस तरह तरह के सवाल जो है उठते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? एंड देर इज नो पीस मील सोल्यूशन टू दिस. आई मीन, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक साइड पे फिक्स कर दिया. इट्स अ सिस्टमिक एनॉमली. ये हमारा पूरा सिस्टम ही कहीं ना कहीं से इसमें रिस्पॉन्सिबल है. और इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो करना चाहिए. मैं कोशिश करूंगा ये छोटा हो, बट अगेन दिल से बात करूंगा तो शायद समय लग सकता है. बट जो जिस माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ वो या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा. मतलब इंग्लिश समझ लो आप, बिकॉज if I speak in English, there might be a bunch of Hindi audience who might not be able to understand me. And if I speak in Hindi, you could have a lot of folks in the South who might have difficulty in understanding me, right? So, इसलिए I'll keep it between Hindi and English. Let's say English to be precise. And all right, so let's just jump into the conversation. Now, एक सवाल जो मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, and something that I've been hearing for a while now, is that most of the folks in India coming out of colleges are not employable. There is some issue with their employability. कंपनीज इनको लेने से कतराती हैं. और मैं स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करूंगा क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से हूं. बट आई थिंक मोर और लेस इट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्री. सो आई थिंक before we talk about all that, it's important to see what really happens. I mean, the entire journey of a student to a professional, right? I mean, so typically a student starts his or her career from the time he gets into a school. उसको स्कूल में डाल दिया जाता है. स्कूल में टिपिकली 12 क्लासेस रहती हैं, अलग अलग तरीके की. द गाय कीप्स ग्रेजुएटिंग एंड रीचिंग टू द नेक्स्ट क्लास, एंड इट्स अ साइन दैट द गाय इज प्रोग्रेसिंग intellectually, mentally, socially, emotionally, whatsoever, right? That is exactly the idea. So as you progress and move further, you gain in terms of your cognitive ability. आप बुद्धिमत्ता में आगे बढ़ते जाते हो, और आप और उत्तीर्ण होते जाते हो, एक्सपर्ट होते जाते हो. एटलीस्ट दैट इज द assumption, राइट? बट ऐसा नहीं होता है. आई थिंक आपने देखा होगा कि 12 साल प्लस अगर आपने प्री नर्सरी भी किया है, 13-14 साल कुछ भी किया है, इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी जब बंदा 12th के बाद अपने करियर ओरिएंटेड कोर्स का चयन कर रहा होता है, या ही वॉन्ट्स टू चूज अ करियर ऑफ हिज ओन, ही इज सुप्रीमली कंफ्यूज्ड. ही इज सुप्रीमली कंफ्यूज्ड because he really doesn't know what to do. So my question over here is that what did we do? What really went wrong in those 12 years that the guy is still seemingly confused as to what kind of career he should choose? And what is a career exactly? Let's define a career. Could be an engineer, could be a doctor, could be a manager, could be anything. We have had successful people in all fronts of life, managers, doctors, blah, blah, blah. But a career is a function of the skills in which you are an expert and the skills which you are passionate about and the skills which you can use to produce an outcome. That is what is career all about.
You use your skills to produce an outcome that adds value in some way to the customer of a business and brings in revenue for the company. As simple as that, right? So you either go and work for the government where you're supposed to produce an outcome, or you work for the company and you're supposed to generate more revenue for the company. अब चाहे वो engineer की capacity में करो, manager की capacity में करो, whatsoever. Even as a doctor in a professional outfit, if you join a professional group of hospitals, you are supposed to bring in revenue, right? I mean, that's the new thing for doctors who are also uh, quote unquote hidden salesmen. Um, but that's the premise, right? But what is it that's really going wrong with the education system? Why is the guy confused? Because our education system, if you look back into the history of it, has been predicated on Macaulayan education system. Macaulayan education system was something that I'm not going to get into the history of all that, but आपकी knowledge के लिए बता दूं कि there was somebody called Lord Macaulay. He came and visited India and he saw the Indian education system was very superlative. You know, we were basically resting on the frontiers of science, and there was this methodology where we could question and we could and we could basically uh, ensure that we get answers to our questions. So it was a very, very scientific way of education which people had in India. And then this guy comes in and he wants to basically ensure that he destroys the education system, because that was the backbone of Indian society, right? So he thought that if I break the education system, I'm actually going to break the backbone of this Indian society, and it will be easier for us to capture them. We've had this 200 years of colonial rule in India, but believe it or not, it started from this moment on, right? Because the idea was to have an education system tailor made for Indian children where they would be discouraged from asking questions. उनको सवाल जवाब पूछने के लिए मौका नहीं मिलेगा. अगर वो सवाल पूछेंगे तो उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा. और द आइडिया वाज टू क्रिएट बाबूस और civil servants who could serve the crown without asking any questions about the status quo. And they were able to generate that kind of crowd जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उनकी बात सुनी एंड ऑल दैट. सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड स्ट्रगल्स एंड ऑल दैट. वी ऑल नो दैट इन सम वे और द अदर. बट आइडिया था कि हमारा मैकालियन एजुकेशन सिस्टम वहां से चालू हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद भी वही चलता रहा. सो मेरे क्लास में भी जब मुझे कुछ पढ़ाया जा रहा था, मैथ्स का कुछ सवाल पढ़ा रहे थे, जैसे एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशिएशन में पढ़ाते थे कि भाई एनीथिंग रेज टू द पावर इज इक्वल पावर जीरो इज इक्वल टू वन, एक्स रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन. तो मैंने एक बार पूछ लिया कि सर कैसे वन हुआ, तो मुझे बाहर निकाल दिया गया. यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, राइट? सो लाइकवाइज आई हैव हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस ओवर द इयर्स जिसमें सवाल पूछने पे यू वर पनिश्ड, राइट? And I was a curious child, much years, much curious than folks in this specific year, folks of my age in this specific year. तो मैंने तो अपनी क्यूरियोसिटी को सैटिस्फाई करने के लिए दुनिया भर की किताबें पढ़ के समझ लिया कि क्यों ऐसे होता है, मतलब ऐसा क्यों था. वाई इज इट दैट एक्स रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन? आई अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थ्योरम दैट दे वर टीचिंग. सर्कल 360 डिग्री का होता है, क्यों होता है पता नहीं, राइट? यू आस्क द क्वेश्चन, यू विल बी आस्क्ड टू मूव आउट ऑफ द क्लास. तो ये चलता रहा. सो बेसिकली हमारे इंडिया में व्हाट वी डिड वाज वी carried on this Macaulayan education, and the impetus and the focus was on grades and marks. So somehow they understood that the competence of an individual is connected to the grades or marks that an individual gets in his exams. And that was the massive, let's say, let me use another word, वो सबसे बड़ी गलती थी हमारी. Because then what happened was that people who could use rote learning or
जैसे कहते हैं ना रट्टा मारना, जो रट्टा मार के पढ़ के वही चीज हुबहू लिख देता था एग्जाम में, उसको मिलते थे अच्छे ग्रेड्स। भले ही वो चीज वो समझे समझे कि ना समझे, इट डिडंट मैटर, as long as you could reproduce it in the same way in the exam, you were considered great, you were considered awesome, and so on and so forth. बट पंगा कहाँ पे हो गया कि ये बंदा जो था, in this wake of 12 years that he spent in the schooling system, he couldn't figure out what he's really good at. उसके अंदर कौन सी स्किल है उसे डिस्कवर नहीं किया गया। अगर उसके अंदर कोई हॉबी थी, उसको परस्यू करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज क्या है बात है यार, हॉबी तो है चेस खेलना। अभी गुकेश जैसे कितने बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स ने उनके हॉबी या उनके पैशन को सप्रेस कर दिया एट अ वेरी यंग एज, सेइंग कि यार चेस खेलना भी कोई वो होता है, पढ़ाई लिखाई करो कुछ बन जाओगे। मेरे अपने फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में एक बच्चा था, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो बहुत ही स्मार्ट था मोबाइल मोबाइल के संग, राइट। उस टाइम पे वो मोबाइल मोबाइल यूज करता था, एंड आई टॉट हिम अ लिटिल बिट ऑफ you know programming, right, when he was age 7 or 8, and he picked it up very well, and he would come to my place and create small small JavaScript applications, right। लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके माँ बाप ने उसको इनकरेज नहीं किया। तो आज की डेट में वही बच्चा जब बड़ा हो गया है, ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ अ जॉब as a business analyst or something in some tech company, but he's not very happy with what he's doing. And I've met him a couple of times in the past, and he's like, I want to get out, I want to go for a PhD in something. And then his parents are like कि नहीं तुम ये सब मत करो अभी, we have to get you married and all that. So not getting into all that, but सवाल ये था कि यही बच्चा इंडिया का एलॉन मस्क बन सकता था अगर उसे मौका मिलता या अपॉर्चुनिटी मिलती। सो समहाउ वी किल एनी अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी और इनोवेशन or even the streak of it that a child shows by subjecting him or her to an education system that banks solely on vanilla parameters। ये तो एक पार्ट हो गया, राइट। तो वो बच्चा जो है वो स्किल कभी सीख नहीं पाता, कभी किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाता है, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता जिस तरीके के आउटकम्स चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने कभी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, वी नेवर रियली फोकस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट, राइट। स्किल डेवलपमेंट या किसी भी स्किल को सीखना जो होता है बहुत ही एक्सपीरियंशियल होता है। इसका मतलब यह होता है कि unless you understand the skill at a cognitive level, and unless you can use that skill, once you understand it, you can use that skill to produce an outcome, solve a problem through building a product or a service। मैं इंजीनियर हूं तो मैं प्रोडक्ट और सर्विस की बात करूंगा, but it means anything, any kind of problem that's there, the solve realistically solving a problem through that skill, and then access to community। Do you have community of peers who are also trying to solve problems using their skills? क्योंकि वो जो म्यूचुअल इंटरचेंज होता है, वो जो कॉन्वर्सेशन होती है, उसके थ्रू यू गेट वाइडर पर्सपेक्टिव्स ऑन योर स्किल्स, you get exposed to um, subjectively a lot of different perspectives, and you learn from it। so skill development के लिए ये चीज़ें essential होती हैं, बट हमने कभी स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। none of us focused on skill development, we were just being taught subjects, like इंग्लिश पढ़ा दिया जा रहा है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। सो वी फोकस्ड ऑन नॉलेज डेवलपमेंट, राइट। आई मीन स्कूल में कॉलेज में जो भी था, हमने नॉलेज डेवलपमेंट पे फोकस किया। तो बाय द टाइम वी रीच्ड 12th, मैं पीसीएम से था, मुझे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाया जा रहा था, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया जा रहा था। मुझे पता नहीं था क्यों पढ़ाया जा रहा है। ओनली व्हेन आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग तो मुझे समझ में आया कि डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज क्या है या पर्पस क्या है, उसको जो न्यूटन ने क्रिएट किया था उसका क्या यूज था, क्यों मतलब उसको क्रिएट किया गया। Same goes with integral calculus, right? I had no clue why integral calculus was there, but I knew the formulas. I knew that this is how you calculate the integral of a integral of a variable, but I had no clue what it meant. I even got good marks in my mathematics exams, but I had no understanding, right? And so same goes with almost all the subjects, so physics हो, chemistry हो, uh, और maths हो, सबका वही हाल था, right? Now a guy like me, uh, a guy like me, technically, um,
who has reached class 12th gets supremely confused as to what career he or she should choose. और फिर उस केस में द नेक्स्ट बेस्ट थिंग विच इज सब ऑप्टिमल अकॉर्डिंग टू मी इज कि यार फलाने बंदे के बच्चे ने कुछ किया था, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, और वो बंदे को जॉब मिल गई. सो द मिडिल क्लास ड्रीम इज basically focused on getting a job. And unlike the American dream, our Indian dream is like getting a job, uh, getting married at a young age, uh, having multiple houses in India, going for foreign trips, uh, and that's about it. You can spend an entire 40 years of your life doing absolutely nothing and still be respectful in the society because you got married at the right age and you produced kids and then you got your kids educated. You also went to foreign countries a few times. You've probably gone to Bali, Seychelles, Malaysia. You keep putting up these photos on social media, so you're considered successful. The society views you successful. That's the tag that we attach to people, but that is not the case here. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 12वीं वाला बंदा है, जो 12वीं में क्लूलेस होता है, वो बेस्ड ऑन सम इनपुट फ्रॉम हिज डैड, सम रिश्तेदार, चाचा चाची, मामा मामी, यू नो ही चूजेस सम करियर जिसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता है, बिकॉज फलाने ने किया था और उसने सही रेस्पेक्टेबल जॉब मिल गई उसको एंड ऑल दैट. नाउ दिस इज समथिंग ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन. दिस इज समथिंग दैट ही हैजंट इवन थॉट अबाउट हिमसेल्फ, राइट? ही हैज नॉट envisaged a career for him, in that specific arena, right? तो वो ले लेता है, ठीक है. he somehow completes all that and then उसके बाद वो सोचता है कि मैं जॉब ले लेता हूँ, राइट? तो वो 4 साल बिताता है बिना किसी स्पेशलाइजेशन के. उसको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दे, वो अपने प्रोजेक्ट वोजेक्ट कंप्लीट करता है, अपने एग्जाम देता है. उसका वो होता है कि यार किसी प्रकार मैं 60% के ऊपर ले आऊँ, फर्स्ट क्लास पास करूँ, अच्छा 70-80% ले आऊँगा तो कोई पर्टिकुलर कंपनी का कट ऑफ जो है वो क्रॉस कर जाऊंगा, फिर उसमें से 10-15 कंपनियों में दूंगा तो कहीं ना कहीं पे हो जाएगा. दैट हैज बीन द गाइस पर्सपेक्टिव, राइट? कॉलेज में भी अगर आप देखोगे, कॉलेज का पर्सपेक्टिव ये है कि हमने हमारे कॉलेजेस जो हैं हमारे यहाँ पे बहुत तेरे multitude of colleges have opened up which are called private colleges, right? And those colleges, if you see, they were predicated. मैं ये वर्ड प्रेडिकेट बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ बिकॉज काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, बट फॉरगिव मी फॉर डूइंग दैट. बट दोज कॉलेजेस वर created to fulfill the need for a large amount of engineers, which was produced when right after Y2K there was a lot of demand. बहुत सारा ऑफशोरिंग, बहुत सारा आउटसोर्सिंग हमारे देश में हो गया. बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स भेज दिए ताकि दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज एन अमेरिकन वर्कर वुड कॉस्ट मोर पर आवर कंपेयर टू एन इंडियन वर्कर हु वुड डू इट एट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट. तो इस फंडामेंटल को लेवरेज करके बहुत सारी सर्विस बेस्ड टेक्नोलॉजी, अब मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सर्विस बेस्ड कंपनीज ने एक तरीके से बॉडी शॉप खोल लिए. और उन्होंने टिपिकली क्या किया कि उन बॉडी शॉप्स में इन बच्चों को रिक्रूट किया और उनको प्रोजेक्ट्स पे लगा दिया विद बेयर मिनिमम ट्रेनिंग. अब ये बंदा हु एनीवेज वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज इंजीनियरिंग, समहाउ गॉट अ जॉब. सोशल प्रेशर था, जॉब तो करना ही है भाई, चाचा क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे एंड ऑल दैट. So he got into engineering. He had no specialization in anything, and it was not even required for him to get a specialization, right? तो हमारे यहाँ पे सर्विसेज कंपनी थी शुरुआत में, उन्होंने लोगों को लिया, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया, प्रोजेक्ट्स पे लगा दिया, प्रोजेक्ट चलने लगे, और ये रिसोर्स बेस्ड बिलिंग थी. सो सर्विसेज कंपनीज का मॉडल होता है कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा उनका टॉप लाइन होगा, बिकॉज दे चार्ज पर रिसोर्स. अभी ऑब्वियसली वो कम हो गया, फ्लैट फी और वो सब चीज़ें आ गई हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक मॉडल जो था कि द मोर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आई हैव, इसीलिए इतना. इफ यू लुक बैक सम 10 to 15 years, यू वुड फाइंड कि बड़ी बड़ी सर्विस कंपनीज 15-20 हज़ार 22 हज़ार लोगों को लेती थी साल में, क्योंकि द मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर अटैच्ड टू अ प्रोजेक्ट, द मोर अमाउंट ऑफ मनी दे मेक, राइट? तो वो सब होने लगा. एंड इस बीच आई थिंक इंडिया में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी खुले हुए थे. बैंगलोर में यू हैड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट कंपनीज फ्रॉम अमेरिका सेटअप द जीसीसी, जिनको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कहते हैं, या जिसको आप इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कह लो, तो वो प्योरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कंटेक्स में हो जाएगा. तो बहुत सारे क्यूए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
और मेजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इन सर्विसेज कंपनीज में थे वो वॉइस बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे, मतलब बीपीओ प्रोजेक्ट्स थे, टेक्निकल प्रोसेसेस थे एंड एवरीथिंग। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत कम थे और क्यूए प्रोजेक्ट्स भी बहुत कम थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो बंदे थे जो उन कंपनीज में चले गए, अच्छा बिफोर आई जंप इनटू दैट पार्ट, आई थिंक द आइडिया इज टू सी कि हमारे यूनिवर्सिटीज में ये जो प्राइवेट कॉलेजेस थे और ये सब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो इतना सारा हमारा मशरूम ऑफ यूनिवर्सिटी में, एक्सेप्ट फॉर 5 of 10 of them, right, which could be considered superior in some sense of the word, because there was research done, there were good professors, they had good connection, the alumni was solid and everything. बाकी सब कॉलेजेस के पास वो सब नहीं था। वो सब प्रिडोमिनेंटली एक तरीके से मनी मेकिंग एंटिटीज हो गए। उनका ये आइडिया था कि हम अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएंगे, अपना एडमिशन बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा एडमिशन होंगे उतने ज़्यादा हम पैसे कमाएंगे। बट देयर इन्वेस्टमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इनसाइड अ कॉलेज वॉज एब्सोल्युटली लेस और समवॉट मिसिंग, राइट। तो मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ और मैंने अपने आंखों से, आई वाज द फर्स्ट बैच ऑफ दैट कॉलेज, और मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो लोग पैसे नहीं डालते हैं। सो हर जगह पे वही कहानी है, मोर और लेस। द प्रमोटर्स हु स्टार्ट दैट कॉलेज आर द गाइज हु नेवर पुट एनी मनी इनटू दीज कॉलेजेस, राइट। और जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो वो 4 साल की इंजीनियरिंग करता है उसमें उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसको सॉफ्ट स्किल सिखाना, उसको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करना, उसको दुनिया भर की चीज़ें सपोर्ट देना, कंपनीज के संग बातें करना, रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाना, दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं जो आप टिपिकली एक्सपेक्ट करोगे एक स्टैनफोर्ड से और एक हार्वर्ड से और एक एनी आईवी लीग कॉलेज से, यूएस में या यूरोप में या इवन चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में, वो हमारे यहाँ नहीं हुआ। Students never got an opportunity to understand the professional world, right? I mean, they very much lived in their disconnect, right? I mean, there was a disconnect between them and the industry. Industry wanted some skills and these guys did not have that skills. When I say industry, I mean product development companies, right, which required people with superior skills. तो किसी प्रकार से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करी, कॉलेज का कोई सपोर्ट वपोर्ट था नहीं, कॉलेज को कोई मतलब ही नहीं था इन सब चीज़ों को, बस ये था कि हर साल हमें नए बंदे ऐड करना है, हमें और बढ़ाना है अपने एडमिशन, हमें और पैसे कमाने। सो इट बिकेम लाइक अ मनी मेकिंग, अ प्रॉफिट मेकिंग सेंटर, राइट। अब ये सारे बच्चे जो इतने सारे कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया से निकले, जिसमें से काफ़ी बंद भी हो चुके हैं बिकॉज पता चला कि वो लोग कुछ नहीं करते थे और पढ़ाते नहीं थे, उनके कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें क्राइटेरिया थी जो सेटिस्फाई नहीं करते थे, वो बंद भी हो गए हैं। बट काफ़ी बच्चों ने उन सब कॉलेजेस से पास आउट किया और करने के बाद उनको नौकरियां मिल गई, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं पे इट्स वर्कड। बट none of these guys specialize in anything, right? None of these guys learned anything in computational sciences, चाहे कंप्यूटर साइंस हो। किसी ने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा, कोई पब्लिकेशन नहीं था। आईआईटीज में जो गए, द क्रेमा डिला क्रेमा लॉट, दे मैनेज टू डू सम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गुड वर्क बिकॉज आईआईटीज में वो एनवायरनमेंट था, वो क्लाइमेट था, प्रोफेसर सपोर्टिव थे, उस तरीके के उनके एलुमनाई बहुत नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था, सम ऑल द पैन आईआईटी एलुमनाई नेटवर्क जो थे वो कहीं से भी थे, तो यू कुड ऑलवेज गेट इन टच विद समबडी हु इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर बेस्ड आउट ऑफ एनवाईसी एंड गेट अ समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट देयर, तो उनके लिए आसान था वो, राइट। द नेटवर्क दे बिकेम अ पार्ट ऑफ बेसिकली वॉज द लाइफ ब्लड ऑफ देयर सक्सेस कर्व। और if you see most of the guys who have done exceedingly well in India, most of them hail from either IITs or IIMs, right? I mean, बिकॉज वो एलुमनाई नेटवर्क का जो सपोर्ट मिलता था उनको, वो हमारे इन प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं था। मैं जब करके निकला तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। आई हैड टू pretty much learn everything on my own by getting in touch with people, talking to professors, talking to major developers, दुनिया भर के कोड पढ़ना, मतलब जो कुछ कर सकते हो करो, सर पीटो, हर करो, लेकिन सीखना है क्योंकि काम करना है, राइट। सर्विस बेस्ड कंपनीज में इतना काम वाम था नहीं बेसिकली, तो उनका ये था कि भाई हमें 8 घंटे किसी प्रकार इनको निपटाना है और ये काम करना है। तो मोस्ट ऑफ दोस गाइज डिड नॉट लर्न एनीथिंग एंड बेस्ड ऑन this continued for several decades, because of which most of the professionals, इनकी बात कर रहा हूँ, so called professionals, they could never become an expert in anything, because अगर आप फंक्शनल टेस्टिंग में हो, राइट, जस्ट गिविंग अ वेरी ब्लैंड एग्जांपल, अगर आप फंक्शनल टेस्टिंग में हो, अगर आप ये सब कर रहे हो, तो यू विल नेवर बिकम एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग अनलेस यू बिल्ड अ प्रोडक्ट, राइट। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी इट वुड बी इट वुड बी एप्ट टू से दैट उस जमाने में, मतलब लोगों को इंडिया के इंटेलेक्चुअल कैपिटल या पूल पे, जिसको आप कहते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड, मिस्टर नीलेकानी ने एक अपनी बुक में कहा था, people were companies were a little skeptical about this talent. They really did not know whether this talent can actually build great products or not. So the menial work that came into India in terms of development
was basically assigned to folks in GCCs where they did it and everything. Of course, that's changed in the last 15-20 years. That's changed, and we have built some very great, amazing products, and we have like a. But I'll come to that. So this continued for many years, and I think even in GCCs you did not have too many specialized people, and most people who were serious about their careers, who were passionate about their things, they went abroad, right? बहुत सारे लोग थे जिनको मैं जानता हूँ वो abroad चले गए, उन्होंने अपना मास्टर्स किया वहाँ से. If you look at any top CEO in the US, of a tech company or otherwise, I just finished reading Indra Nooyi's biography where she spoke about how her life changed after she went to America for a degree, and being in Yale University, and then again being a part of BCG and subsequently ABB, Motorola, and eventually PepsiCo. How it changed her life, and how successfully it sort of molded her in the uh, leadership space in a way that she became a prominent leader across America. ये कहानी सबकी है, बहुत लोगों की है जो यहाँ से बाहर चले गए और उन्होंने अपना मास्टर्स किया वहाँ से. उसके बाद मास्टर्स करने के बाद जो बात लिया उन्होंने ये किया कि कुछ समय कुछ साल काम किया, उसके बाद फिर वो अपने एमबीए के लिए गए वॉर्टन या हार्वर्ड या किसी बड़ी जगह पे, और वहाँ से फिर वो लीडरशिप रोल पे समवॉट स्टेप इन किए, राइट. एक ज़माने में कैडबरीज का और जनरल इलेक्ट्रिक का भी प्रोग्राम, लीडरशिप प्रोग्राम चलते थे जहाँ पे वो लोग दे वुड रिक्रूट पीपल from these Ivy colleges and put them into one of these programs where they would be rotated across 18 months to different locations of GE. And eventually, once they're done with that program successfully, they would be placed in a leadership role in one of the locations of their choice. So the guys who went out, their career and their life changed drastically. The guys who chose to stay inside for some reason or the other, right? I mean, I spent a decade in the US and Europe, right? So I've seen that world there, and I've seen the difference when it comes to competence. So typically, what happens is the guys who chose to stay here, right? They are the guys who built somewhat mediocre careers, right? I mean, and they could not succeed beyond a certain point because in the nature of work that you do, there is no scope for you to do creativity and innovation. If you There was a term that got popular during the pandemic called quiet quitting, right? I mean, quiet quitting क्या होती exactly? But I'm a very passionate guy, I want to do something really meaningful, and मैं बहुत ज़्यादा दुनिया भर की जगह वो कर रहा हूँ. I want to do something for the company. I want to basically create a great product for the company that can bring in the Rekin Mullah for the company and make the company some good fortune and everything. And I do all that, and I don't get the support from my management. तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें बंदे बहुत यूनिक होते हैं, अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, एंड दे हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल, राइट, एटलीस्ट इन द टेक्नोलॉजी स्पेस. But they face disappointment, dejection when they see that there is no excitement in the top layer, the middle management layer, or maybe the layer above it, when it comes to productizing something or bringing something to life, right? दुनिया भर के जो हमारे इतने सालों में इतनी कंपनीज में जो कोडिंग जैम्स हुए हैं, राइट, कोड जैम्स हुए हैं, कोडिंग जैम्स हुए हैं, बहुत सारे इस तरीके आइडियाज हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने अपना नॉमिनेशन दिया, दे बिल्ड क्रेजी अमाउंट ऑफ एमवीपीज, प्रोडक्ट्स बनाए, उन्होंने फीचर्स बनाए आउटस्टैंडिंग. Those features could have done wonders for the company. Unlike Google, which capitalized on the 20% per week thing, and created a brilliant product like Google News. हमारे यहाँ पे वो जो आइडियाज थे उसको ऐसे ही एक अवार्ड फंक्शन कर दिया, उनको प्राइज दे दिया कि भाई 2 weeks ट्रिप टू बाली इफ द कंपनी वाज जनरस, और मे बी समथिंग एल्स, और सम सोडेक्सो कूपन दे दिए एंड ऑल दैट. सो वो कभी प्रोडक्टाइज हुए ही नहीं. अगर वो प्रोडक्टाइज होते तो those guys would have taken an initiative to ensure that this product works for the company. इस वजह से if you look at the innovation in India per se, right? I'm not talking about DPI जो सरकार की तरफ से हुए हैं, वो outstanding हुए हैं. I'm talking predominantly in terms of private sector, the technology industry का innovation क्या है. ना हमने कोई रिसर्च में इन्वेस्ट किया, सर्विसेज साइड में कंपनीज ने कभी रिसर्च में इन्वेस्ट किया नहीं. I remember going to MIT, and as I was traveling through MIT, I found that there are research labs, right? EMC Square का lab था वहाँ पे, NetApps का lab था, and ये spectacle जो है is common across the US. You go to any university, you would find a research lab of company inside the campus of the university, right? So the idea is that a guy doing a master's would work as a research associate in that company,
and on successful completion of his term, he might get an offer from the company to work full time. And that's been the case with a lot of folks. I think Marisa Mayer was one of them. Not sure about that. You can probably read a little bit on that, but she probably was picked up um, through one of these programs. Anyway, so the other part is that तो हमारे यहाँ पे ये जो चीजें थी, इसकी वजह से हमने कभी, जिसे हम कहते हैं ना, सॉलिड टैलेंट पूल बनाया नहीं कभी। एक बहुत ही मीडियोकर टैलेंट पूल था। मीडियोक्रिटी वाज एनकरेज्ड, एंड पीपल, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग मनी एंड गेटिंग पेड एंड गेटिंग 15% इंक्रीमेंट्स, यू वर हैप्पी. So now what happens is that I'll cite an example of China. This is written in Kai Fu Lee's book called AI Superpowers. तो देयर वाज अ लॉन्ग बैक जब गूगल ब्रेन ने एक एआई बनाया था अल्फा गो करके, एंड दे डिसाइडेड कि अल्फा गो वुड प्ले अ गेम ऑफ गो विद द एग्जिस्टिंग चैंपियन ली सुडोल, राइट. एंड वो गेम हुआ, और उसमें गेम में ली सुडोल अल्फागो से बुरी तरह से हार गया, राइट. एंड दैट वाज द एआई मोमेंट फॉर चाइना, और द point of inflection when Chinese government or anybody realized how important AI is. So they created policies around AI. They sent guys for AI education. They made AI a mandatory part of the education curriculum. They invested money. They created foundation funds करके उन्होंने फाउंडेशन फंड्स या गाइडेंस फंड्स जैसे जो इजरायली कंसेप्ट था, जैसे उन्होंने फंड्स खोले जो एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे. दे कॉल्ड प्रोमिनेंट पीपल लाइक आई फू ली, रॉबिन ली, एंड अ बंच ऑफ अदर पीपल टू कम बैक टू चाइना and basically you know they create and basically start focusing on AI products and all. So through all that effort from that moment on till now, we and through all that research that went into it, the billions of dollars and the trillions of dollars spent on creating world class AI infrastructure and products and everything, we have now come to a stage where they are churning out LLMs far better than the American versions, right? I mean, developing it far better than them. अब हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी रिसर्च पे फोकस ही नहीं हुआ है, राइट. जो टैलेंट यहाँ पे रह गया वो नौकरी करता रह गया. उसका इंटरेस्ट कभी कभार था, कभी कभार नहीं था. जो उसका एक्चुअल पैशन था उसने कभी फॉलो किया नहीं, तो हमारे यहाँ रिसर्च तो हुआ नहीं. हमारे यहाँ पे रिसर्च की फंडिंग भी उतनी ज़्यादा एडिक्वेट नहीं थी. बहुत कम पैसा रिसर्च पे दिया जाता. पीपल डोंट अंडरस्टैंड जो फंडामेंटल रिसर्च की वैल्यू होती है, राइट. उसकी वो उस लेवल पे, if you see a little bit of Hollywood movies, you would get a hang of how much serious they are about research, right? If you see Jodie Foster's Contact, or if you see the recent series called The Three Body Problem, which appeared on Netflix, right? You would find that research is the backbone of every society. It is the backbone on which America became a superpower, right? The amount of money it put into research. I read a book long back on Bell Labs, right? It's called The Idea Factory, right? And it spoke about how, under the guidance of Marvin Kelly, who headed Bell Labs then, he hired every potential talent across the world, right? I mean, he went there and told them that you can come to America, tell me what you want, and they used H1B to get these folks to America. Together, those folks, folks like Claude Shannon and Dennis Ritchie and bunch of other folks, their consolidated efforts led to the creation of almost any technology that we see in our hands right now. It could be a mobile phone, satellites, could be C language, could be anything, name anything, and it's come from Bell Labs, some way or the other. वो जो उन्होंने बेल लैब्स में जो किया है, जो चीज़ें इजाद करी और जो इन्वेंशंस करे, उसकी वजह से अमेरिका अपने टेक्नोलॉजिकल स्पेस में बहुत आगे चला गया. द रीजन इट बिकेम अ सुपर पावर is because there was constant focus on science and technology, right? And that is the same path that China has taken over the last 15-20 years, right? दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे सालों साल लोग बैठे रहते हैं, राइट. इफ यू गो टू मोस्ट ऑफ द कंपनीज, यू वुड फाइंड दैट लोग सालों साल बैठे रहते हैं और ऑर्गेनिकली ग्रो करते रहते हैं. वेदर दे आर कॉम्पिटेंट फॉर दैट पोजिशन और नॉट, इट डजंट मैटर, because you have experience. You were in that company for 30 years, so you were promoted to be the VP of a company. भले ही आपको पता नहीं VP बनकर करना क्या है,
हो सकता है आपके पूरे करियर में आपने कोई प्रोडक्ट डिजाइन ही ना किया हो। आज की डेट में इफ यू टॉक टू फोक्स इन द इंडस्ट्री, एंड इट वुड बी अ लिटिल आयरॉनिकल टू से दैट, यू विल फाइंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत लोगों को समस्या हो गई है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। एंड बहुत सारी कंपनीज जो हैं, उनके लीडर्स जो हैं, इस बात पे एकदम क्लूलेस हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संग करना क्या है। चलो आ गया है, चैट जीपीटी को कुछ बोल दो, वो कंटेंट जनरेट कर देता है। एंड दे रीड दिस बुक्स, दे हेयर अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स, दे हेयर अबाउट जीपीटी, द एजेंटिक इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, ऑल दीज थिंग्स आर देयर थियोरेटिकली, बट most of these folks have not written a line of code, right? सिस्टम बिल्ड नहीं किए हैं, राइट? और अगर आप सिस्टम बिल्ड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इंटरनली क्या हो रहा है। इनफैक्ट देयर इज अ न्यू फील्ड कॉल्ड एआई एक्सप्लेनेबिलिटी, जिसमें ये हो रहा है कि इवन द मोस्ट टैलेंटेड एआई इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड आर अनेबल टू फैथम द बिहेवियर ऑफ एआई सिस्टम्स। जो वो आंसर दे रहा है वो क्यों दे रहा है, क्या लॉजिक है, वो पता नहीं हमको, बट वो आंसर दे रहा है। एज लॉन्ग एज इट्स थ्रोइंग इन एन आंसर विच हैज सम लेवल ऑफ एक्यूरेसी, राइट, वी आर नॉट कंसर्न्ड। तो हेलुसिनेशन बीच में आया था एआई में, उसको भी रैग्स और दुनिया भर के अलग अलग तरीकों से उसको भी दूर कर दिया गया है। बट द प्रॉब्लम ओवर इज द आर लीडरशिप who have been groomed on people management, right? अच्छा, मैं people management पे आता हूँ। So I remember going to Paris for a while, and मैं अपनी ट्रेनिंग पे गया था, तो मुझे जो बंदा सिखा रहा था, he was a developer with 22 years of experience, right? And he basically was coding, right? I mean, he was coding for the last 22 years, and he would make me sit right next to him, and teach me everything. This is the वर्जन कंट्रोल, दीज आर आर ब्रांचेस, दीज आर आर फाइल्स, व्हाट डू वी डू, कहाँ पे वो होती डिपेंडेंसीज हैं, सब कुछ उसने मुझे बताया। तो जो 6 मंथ्स मैंने बिताए वहां पे, मुझे सब समझ में आ गया कि कोडिंग कैसे होती है। एंड दिस इज 2005-6 व्हेन सी प्लस प्लस वॉज द नोन लैंग्वेज। अब सी प्लस प्लस में ये था कि पॉइंटर्स की वजह से कोडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। आजकल आपके पास इजी लैंग्वेजेस आ गई हैं, बट उस टाइम पे बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स एंड ऑल, यू इट देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द कोड इटसेल्फ। बट somebody telling you how to write code, and telling you the software engineering principles and everything else around it was something that helped me a lot in my career, right? I understood how what it took to create a what it took to build a professional product, right? और वो गाइडेंस बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। व्हेन यू सिट इन अ सर्विसेज कंपनी अटेंडिंग टू कस्टमर कॉल्स फॉर अ टेक्निकल प्रोसेस, राइट, you don't really learn anything from that, because all you're doing is a set script that you have to follow, and you're just answering queries, and you're just waiting for some gold star। अगर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस होगा तो गोल्ड स्टार मिल जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, एंड सम इंक्रीमेंट, एंड दैट्स ऑल। ऐसे बहुत लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। एंड व्हेन दोज गाइज गो अप एंड बिकम लेट्स से सक्सेसफुल लीडर्स, अब ऑब्वियसली लीडरशिप स्पेस में आपको स्ट्रेटेजिक नॉलेज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें होनी चाहिए। आपके पास वो है कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, राइट? तो मैं अभी लीडरशिप की बात नहीं करूंगा, मैं मेरा टॉपिक लीडरशिप और एम्पैथी इन सब पे नहीं था, बट ये था कि व्हेन यू हैव फोक्स, disinterested folks, part of the who have gone through that entire um, let's say the entire process of being groomed in a very mediocre environment। जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि हमारा फोकस मेडियोक्रिटी पे इतना ज्यादा है कि हमने एक मेडियोकर वर्कफोर्स क्रिएट किया है, अनलाइक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज लाइक, जिनके संग कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज जो अपनी जगह पे एक्सेलेंट हैं, राइट, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट काम किया हुआ है, राइट। तो उन कंपनीज और उन कंट्रीज की अगर आप बात करोगे, तो हमने उस तरीके से इतना अच्छा टैलेंट इसलिए प्रोड्यूस नहीं किया बिकॉज हमारा फोकस हमेशा मीडियोक्रिटी पे रहा है। इसलिए हमारे यहाँ से नो वंडर कोई गूगल नहीं निकला है, कोई मेटा नहीं निकला है, क्योंकि हमारे यहाँ वो इकोसिस्टम या वो क्लाइमेट ही नहीं है ये करने का। अगर आप कुछ सिग्निफिकेंट करना भी चाहोगे तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स थिंग्स आर चेंजिंग राइट नाउ, बट द रेट ऑफ चेंज इज वेरी स्लो, राइट? तो इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, ये तो हमने कहावत सुनी होगी। सो इट टेक्स अ सोसाइटी टू क्रिएट अ कॉम्पिटेंट इंजीनियर। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वो सिस्टम रहा नहीं। आई वॉज रीडिंग इलॉन मस्क बायोग्राफी, and I think
I really don't like Elon Musk too much because of his uh, because of what he's doing right now. Right? Let's not get into much politics. But I think the good part about that guy is that he is supremely focused and he's an expert in whatever he does. If he doesn't know anything, he will spend significant amount of time reading about it, asking questions about it from experts, and doing anything and everything to know about it till the time he gains some level of expertise, right? और अगर बहुत साल पहले एक डिबेट चला था कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको 10,000 आवर्स तो देना पड़ता है. ऑफ कोर्स दैट नंबर वाज नॉट करेक्ट एंड आई थिंक मैल्कम ग्लैडवेल ने कहीं पे अपनी वो किताब में लिखा था ये. बट 10,000 आवर्स, आई मीन मेटाफोरिकली इसका मतलब ये होता है कि यू शुड हैव डेडिकेटेड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल योर एडल्ट एज टुवर्ड्स मास्टरिंग दैट स्किल. तब जाके आपको कंप्लीट कॉम्पिटेंस आता है अपनी स्किल पे. अब चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, म्यूजिक हो, एनीथिंग, राइट? हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं था कभी भी. तो हमारे यहाँ पे जो स्किल पढ़ाया गया वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पढ़ाया गया. चार, अगर आप पुराने जमाने में देखोगे, ड्यूरिंग द 12th century एंड 13th century, गोइंग लिटिल बैक, यूड फाइंड दैट अप्रेंटिसशिप और दुनिया भर के जो चीज़ें थी उन सब को मिला के इट वुड टेक अराउंड 15-16 years फॉर अ गाय टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, because by that time he would become an absolute expert in whatever in his particular trade, right? It could be shoemaking, it could be being an ironsmith or a goldsmith, और कुछ भी आप करने की सोचो तो वो था. हमारे देश में वो है नहीं. अब 4 साल में आप क्या ही कर लोगे? दुनिया भर के आपने कोर्स स्टार्ट कर दिए, कोर्स का कोई आउटकम नहीं है, बस बच्चों को पढ़ा रहे हो डिग्री देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए. ऑन दिस मैड ऑब्सेशन विद सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज, ऐसे ऐसे पीएच लोग पीएचडी कर रहे हैं जिनको पीएचडी करने के बाद भी पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस. सो आई मेट अ गाय हु वाज अ बीटेक. In fact, I interviewed him for a role long back. Um, and he had done his 4 years of engineering computer science, 2 years of masters in computer science, and then he was doing he had completed his PhD again 5 years. So 4 plus 2, 6 plus 5, 11 years studying computer science. And when we gave him a problem to solve in Java, he did not know how to code. He said, I'm supposed to be a researcher and all that crap that Joel Spolsky talks about, right? The first signs of rejection. And he gave some very philosophical answers to everything, But the basic attribute of a software engineer, the role demanded somebody who could code, उसको नहीं पता था कोड करना. तो हमें उसे रिजेक्ट करना पड़ा. तो कहीं ना कहीं पे हमारा जो ये सोसाइटी का जो मैड ऑब्सेशन है विद डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस एंड स्टफ हैज टेकन प्रेसिडेंस ओवर स्किल्स, राइट? तो आपके पास अगर यूनिवर्सिटीज में भी आप देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी में कभी अप्लाई करना चाहोगे किसी प्रोफेसर रोल के लिए, मे बी आई वांट टू टीच कंप्यूटर साइंस एंड ऑल दैट, you would not get an entry because you did not have a PhD or a master or something, right? तो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आपके पास डिग्रीज हैं तो आप कॉम्पिटेंट, लेकिन अगर आपने बहुत आउटकम प्रोड्यूस किए हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो इस धारणा और इस विचारधारा की वजह से हमने मीडियोक्रिटी को यहाँ पे इनकरेज किया है सम वे और द अदर, राइट? और यही रीजन है, आप स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो. मैं ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में बात नहीं करूंगा, बट मैं ये इस चीज़ का एग्जांपल देना चाहता था कि हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों है, मतलब क्या ये एनवायरनमेंट ऐसा क्यों है. बट स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो समस्या ये है कि स्किल डेवलपमेंट, आई मीन इफ यू लुक एट स्किल डेवलपमेंट टुडे, यू वुड फाइंड दैट वी आर टीचिंग पीपल स्किल्स. देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स रनिंग, some appreciably good work done by the government, funding those programs. But the employment elasticity of the country has been close to zero, which means that not many jobs were added per GDP growth, per percentage GDP growth, right? इसका मतलब है कि हमारे पास ज़्यादा जॉब नहीं है. अब इन अ कंट्री जहाँ पे हम मान लेते हैं कि 50 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 50%, अगर हम मान लेते हैं 50-55 करोड़ या 50 करोड़ लोग भी अगर काम करने लायक हैं, काम करने के लिए उपयुक्त, हम मान लेते हैं 50 करोड़ में 50% आर वेमेन, 50% आर मेन, तो कहाँ से जॉब लाओगे? उसमें से भी आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा व्हाइट कॉलर जॉब्स में. लेट्स से 10% से ऊपर के व्हाइट कॉलर जॉब्स के हो गए, बाकी 8-90% आपके ब्लू कॉलर हो गए. ब्लू कॉलर कहाँ से लेके आओगे? जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, सर्विसेज कैन नॉट अकोमोडेट ऑल ऑफ दैट, राइट? और इवन इन सर्विसेज नाउ विद एआई कमिंग, राइट, ऑटोमेशन पहले आ गया था. सो लेट मी टॉक अबाउट इट अ बिट एंड देन प्रॉब्ली ट्राई टू कोरिलेट ऑल दिस थिंग्स. जब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर वी वर एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, बहुत साल से था, अभी भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है. यू फाइंड दैट
एग्रीकल्चर में जब मैकेनाइजेशन हुआ, जब ट्रैक्टर्स आए और दुनिया भर की मशीन्स आई, तो दैट रिड्यूस्ड जॉब्स for a lot number of people attached to agriculture some way or the other, right? And because and the same thing is coming now, right? जब automation आया, obviously it reduced the need for few people, not many. But अभी जो artificial intelligence कर रहा है, right, with chat GPT and Devin, and the fact that now any job, any white collar job could be done by an AI effectively, right? So if you look at the economics behind it, right? If I am running a company, और पहले मेरी कंपनी में टीम would be of a team size would be typically of 15 people or 10 people. Now I don't need that kind of people. I need only 3 people or 4 people at max, and I'll augment their capability by giving them access to most powerful AIs, and they can add more creativity. You can focus on creativity and innovation, and they can let all the menial work be done by AI, right? And that's about, so we are moving towards that innovation economy where human capital uh, doing repetitive work will not have a job, right? अब सवाल ये आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार AI will also, like any other wave, when Model T came, the it sort of decimated the horse carriages and all, which used to be the primary mode of travel. And but the good part was that the horse carriages जो थे, उसके जो ड्राइवर्स थे, जो चलाते थे, राइडर्स रादर, they learned driving, right? And they became drivers, right? Now I was reading this book called Co-Intelligence by Ethan Mollick. He's a very renowned professor in an Ivy League, and he's saying that the efficiency gain when steam engine appeared was 18 to 22%, right? Back in those times. But GPT के आने के बाद the efficiency gain जो है, that is around 80 to 85%. Now, if a company becomes efficient, right, then it will not require too many people, right? It will require some competent people for adult supervision, and it will give them access to the most powerful AI and the systems. Compute is becoming cheaper, right? Compute will become cheaper. But in a big way, the OPEX will come down because the part in the OPEX, operating expenses में सबसे ज़्यादा जो contribution रहता था, सबसे ज़्यादा जो चीज़ रहती थी, वो रहता था salaries, right? So you can reduce your salaries significantly, and which will optimize your costs, and that will grow your EBITDA like anything. So your net profit will increase because now you are not spending a dime extra on human capital, which is the most expensive component. So if you look at all these scenarios, you will find that we are marching towards doomsday rather, sorry. But somehow we are consoling ourselves कि सब कुछ ठीक है, all is well, all is well, all is well. All is not well at all. और सिचुएशन बिगड़ने वाली है. As AI starts coming in, as industry is right now a little skeptical of using AI for whatever reasons they have. The AI adoption has not been that great, but as industry starts understanding how AI can be leveraged and all that, and they start using it within their own ecosystems, they will understand that they don't need too many human capital or too much human capital, right? And that will be disastrous for us, right? तो आई जस्ट होप ऐसा ना हो. मैं सीरियसली मना रहा हूँ ऐसा ना हो, बिकॉज वाइट कॉलर जॉब्स में बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो जो आसानी से एआई कर सकता है, राइट? फॉर इंस्टेंस नोटरी का जो काम है, राइट, या अगर कोई कंटेंट जनरेशन हो गया, राइट. यार मजे की बात यह है कि मैं ये सब टूल्स ऑलमोस्ट डेली यूज कर रहा हूँ. रिसेंटली आई यूज सो मेनी टूल्स टू AI tools to generate my website, generate my business card, generate my logo. On a daily basis I'm using these AI tools. पहले मैं ये काम फिवर में जाके करता था, थीम फॉरेस्ट में जाके थीम्स खरीदता था, दुनिया भर की सब कुछ करता था. आज की डेट में आई जस्ट गो टू एन AI वेबसाइट जनरेटर, और उसको सब बोल देता हूँ, वो बना देता है, और उसको ये सब चीज़ें दे देता हूँ, उसमें डाल देता है. आई जस्ट हैव टू पुट माई डोमेन एंड कनेक्ट इट टू माई डोमेन एंड माई वेबसाइट इज अप एंड रनिंग. ये मैंने रिसेंटली किया है अपने अपने कंसल्टिंग आउटफिट E42
Z.in के वेबसाइट में जाके देखिएगा, एवरीथिंग हैज बीन मेड बाय एन AI जनरेटर. So if a person like me, and somewhat I would call myself a novice, can learn everything about, can build a system, can do things, different kind of things using AI. Imagine what companies can do. तो कंपनीज जब करने लगेंगे तो फिर तो आपकी जॉब चली जाएगी. क्या ही करोगे आप वहां पे? तो अब आप सोच रहे होगे ना कि हमारी मेडियोक्रिटी के लिए अब कोई वो नहीं है, अब कोई बचाव नहीं है, बीच बचाव नहीं है, देयर इज नो वे. बट द गुड पार्ट, आई थिंक द सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बना, थैंक्स टू द लाइक्स ऑफ फ्लिपकार्ट, राइट? आई मीन, ऑब्वियसली आई वुडंट से कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी गुड एंड ऑल दैट, बट अच्छा है, इट्स रियली गुड. बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ capitalism in India, the focus of these startups were to hire the top and the best talent across the spectrum. And that has led to the creation of a pool of folks who are competent and have built cutting edge products. You will see them in the offices of internet startups in Delhi NCR. You will see them in Bangalore in different kind of co-working spaces. You will see them in various capacities. But they are the lifeblood of innovation that's happening in India, at least in the private sector. वो सारा इनोवेशन जो इतने सालों से नहीं हुआ था, वो इस वक्त हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रहा है, some way or the other. Because the idea is to create state of the art products, right? So you have some of the most competent, cutthroat, competitive people uh, working super hard to create the next best experience for the consumer or the customer. So that is somewhat um, delightful, and it's very good to see these things happening across India, because यही जगह से इनोवेशन निकलेगा, राइट? यही जगह से इनोवेशन निकलेगा. The Indian companies that have not been able to innovate so far would have to take cue from these startups. अब स्टार्टअप बोलना थोड़ा सा यू नो फेयर नहीं होगा, बिकॉज ये काफी बड़े कंपनीज हैं, बट दे स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप एंड देन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स दे बिकेम बिग. But the model they followed of promoting people, who are into innovation and all that, of course, I wouldn't say कि हमारा startup ecosystem बहुत successful है, but at least we have done good work there, and it always happens in phases. Of course, the bad ones will weed out, and then you'll probably have like a Zoho and a Zerodha kind of a startup that will become really big, and then to pave way for the next great set of startups coming out. So it will happen. It will happen gradually. But in this, because of this process, because of this entire phenomena of startups coming to India and then becoming a startup hub and all, innovation index has increased, at least in the technology space. There's so many. I mean, if you just go and read a lot of these different innovation that Flipkart Engineering talks about, right, in the engineering space, or you go and see some chief technology officer of, let's say, a consumer company like Swiggy, how they are handling a specific customer problem technically. You see innovation. You see the amount of innovation that's happening to, improvise. I wouldn't sort of use the word improvise because it's mostly for theatrics, but optimize the customer's experience is what they're focusing on. And that requires some really um, star programmers, star folks who can do that. तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे एक अच्छा टैलेंट पूल बना है, बट दैट नंबर इज वेरी लेस compared to the large number of folks who are still in that sphere of incompetence, information asymmetry, and a lot of other things here and there. तो यही सब बातें करनी थी, आई थिंक बहुत दिनों से उसमें था. और एक आखिरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं पे हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हमने कभी लर्निंग आउटकम्स पे फोकस नहीं किया, लर्नेबिलिटी पे हमारा फोकस था नहीं. आज भी जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं इंडिया के चारों ओर, ऑफकोर्स द फ्रेमवर्क इज प्रीटी गुड. क्यूपी नॉस का जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे बैठा हुआ है. बट एसेंशियली लर्नेबिलिटी जो होती है ना, कि हम सीखते कैसे, उस पर फोकस थोड़ा सा कम है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, एंड एवरीथिंग. और इसकी वजह से आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम देखे हैं. ऑल्सो द फैक्ट दैट आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द academia in this country, right?
academia in this country have been largely disappointing because they don't want to do anything, and you should, I think, my suggestion to universities, if they want to listen, is that you should not put old retired folks as chancellors or vice chancellors of universities because they just want to sit there and do nothing. You should hire, you know, proactive, competent, smart folks who can take the university to the next level by taking risk, by doing cutting edge research in the university. आपके यहाँ का जनता, आपके यहाँ का एकेडमिक इतना डिस्कनेक्टेड है मार्केट रियलिटी से. माय प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड वुड हैव डन hundreds of consulting projects, राइट. और वो करने के बाद उनकी इंडस्ट्री के लिंक्स स्टैब्लिश हो गए, उन्होंने केस स्टडी पे काम किया, क्या नहीं क्या किया, एंड दे अंडरस्टूड हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. दे वर सो क्लोज टू द इंडस्ट्री, दे न्यू इन एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री, राइट. हमारे यहाँ पे एकेडमिक किसी ने कुछ बेचा नहीं है, सेल्स नहीं किया है, मार्केटिंग नहीं किया है, लेकिन पढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को. सो माई क्वेश्चन टू यू इज दैट, एंड इफ यू आर दैट academic who's just done his PhD in marketing and never had a day selling anything or marketing anything, how could you teach marketing? It's an experiential science. If you have not done marketing yourself, how will you teach marketing? तो मेरा जिसे कहते हैं ना कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े से अच्छे एकेडमिक्स को रखिए. पिक देम. You will have to shell out some money, but pick the top talent from outside and pick up from the industry. Pick up failed entrepreneurs, right? आपके इंक्यूबेशन सेल के जो हेड होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, जिन्होंने कभी कुछ बेचा नहीं, कंपनी स्टार्ट नहीं करी, तो वो क्या ही स्टार्टअप को गाइड करेंगे. तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पिक्चर है एकेडमिया की राइट नाउ यहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर द टॉप 10-15 कॉलेजेस. इनको मैं ऊपर से हटा लूँ बिकॉज उनके प्रोफेसर्स ने काफी अच्छा काम किया है बाहर. दे हैव वर्क विद द इंडस्ट्री, दे हैव लिंक्स विद द इंडस्ट्री, दे अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री इज मूविंग. आई हैव पर्सनली इंटरेक्टेड विद सम ऑफ देम, but that's not the case with the rest, right? The rest are at a very different trajectory, and every time I talk to them, I get extremely disappointed because of the fact that they have no clue how the industry works. So I think those are the few things I want to discuss, or I think मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लिया, so sorry for all that. Sorry for taking too much time, but this was something that I wanted to cover for quite some time, and I hope I have been able to articulate everything that was there in my mind. अगर कुछ ऐसा बच गया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और प्लीज़ हमें बताइएगा. आई कैन प्रॉब्ली टेक इट अप इन अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर. ऑलराइट, सी यू सून.